آج ویو 360 میں ماضی میں داعش سے تعلقات کا شبہ آج ہزاروں افراد کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تشویش۔ لاہور کا ایک ایسا اسکول جس کے اخراجات کا بڑا حصہ کوڑے سے ہونے والی آمدنی سے پورا ہوتا ہے، اور قوت مدافعت بہتر کرنے کے لیے ذہنی صحت کا اچھا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اگلے سال مارچ میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کی جانب سے داعش کی شکست کے اعلان کو 2 سال ہو جائیں گے۔ داعش کے گڑھ عراق میں اس تنظیم کی شکست کے بعد ہزاروں ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا جن پر داعش سے تعلق کا شبہ تھا۔ ان افراد پر کیمپس میں رکھ کر مقدمات بھی چلائے گئے۔ ان میں سے بہت سے افراد پر جرم ثابت ہوا، لیکن بہت سے افراد بری بھی ہوئے۔ مقدمات سے بری ہو جانے اور رہائی پانے والوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی ان صحرائی کیمپس میں دربدر ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق عراقی حکومت ان کیمپس کو بند کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ یہ فیصلہ بہت سے افراد کی جانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ عراق میں موجود کئی کیمپوں کی طرح یہ کیمپ بھی 2016 میں اس وقت قائم کیا گیا جب عراقی اور اتحادی افواج نے داعش پر حملہ کیا اور شدت پسندوں سے علاقہ واپس لینے کی کوشش کی۔ اس لڑائی کے دوران کم سے کم 10 لاکھ افراد جان بچا کر عراق کے نیم خود مختار علاقے کردستان کی جانب بھاگے۔ بہت سے افراد پر جرم ثابت ہوا مگر بہت سوں پر نہیں۔ محمود نے ہمیں کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کا چہرہ نہ دکھایا جائے۔ مجھ پر داعش کی مدد کا الزام تھا اور میں گرفتار ہوا۔ تفتیش کی گئی، مقدمہ چلا اور بعد میں انہوں نے مجھے رہا کر دیا کیونکہ ثابت ہو گیا کہ میرا داعش سے کوئی تعلق نہیں، اور اس سب میں 2 سال لگے۔ صرف اس کیمپ میں موجود 200 اور لوگوں کی طرح محمود کو ایک کرد جیل سے رہا کیا گیا، لیکن اس علاقے سے باہر عرب اکثریت والے باقی ماندہ عراق میں ان کی رہائی کے دستاویزات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، اور محمود کا خاندان وہیں بستا ہے۔ اگر وہ گھر جانے کی کوشش کریں گے تو انہیں نئے سرے سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن ایک طرف جہاں عراقی حکومت ملک بھر میں پھیلے ان کیمپوں کو بند کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جن میں اس وقت لگ بھگ 20 لاکھ افراد رہتے ہیں، محمود کی طرح کئی افراد یہاں خاندان آباد کر رہے ہیں۔ حال ہی میں محمود نے شادی کی ہے اور اپنی والدہ کو بھی گاؤں سے اس کیمپ ہی میں لے آئے ہیں۔ کیمپ کے رہنما کہتے ہیں کہ کسی حل کے بنا یہ خاندان کہیں اور نہیں جا سکتے۔ ان کیمپوں میں لوگوں کو شدید گرم اور سرد موسم کا سامنا ہے اور انسانی بنیادوں پر ملنے والی امداد محدود ہے، لیکن انہیں کہیں اور تحفظ نہیں مل رہا۔ نوجوان کہتے ہیں کہ کیمپوں میں رہنا ان کے لیے بدنما داغ کی مانند ہے جو خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ 21 سالہ محمد نے بھی اپنی شناخت چھپانے کی درخواست کی۔ اگر انہوں نے کیمپس بند کر دیے تو لوگ مارے جائیں گے۔ پہلے ہی چیک پوائنٹ پر وہ پوچھیں گے کہ کہاں سے آ رہے ہو، اتنا وقت کیمپ میں کیوں رہتے رہے، اور پھر وہ کہیں گے کہ آج کل تو کیمپوں میں صرف داعش کے لوگ ہی رہتے ہیں۔ فلاحی تنظیموں کا کہنا ہے کہ عراق کے دیگر حصوں میں کیمپس بند ہو جانے کی وجہ سے پہلے ہی ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایسے افراد جو زیر حراست رہے ہیں اور اب ان کی رہائی کے دستاویزات دیگر عراقی علاقوں میں تسلیم نہیں کیے جاتے کا کہنا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کھو چکے ہیں۔ ہیدر مرڈاک کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ Mark for life displaced Iraqis in cycle of abuse and stigmatization۔ اسی رپورٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ عراق کی مرکزی حکومت اور کردستان کے نیم خود مختار علاقے کی حکومت دونوں ہی ملک میں دربدر ہونے والے ان افراد کے ساتھ متعصبانہ رویہ جاری رکھے ہوئے ہیں جن پر داعش کے ساتھ تعلقات کا شبہ رہا ہے۔ ایمنسٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ عراقی حکام کو اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ کسی بے گناہ کو دوسرے کے جرائم کی سزا نہ دی جائے۔ عالمی اتحاد نے داعش کے خلاف کامیاب عسکری کارروائی کی اور 2.25 سال پہلے داعش کی مکمل شکست کا دعویٰ بھی کیا۔ جب تک داعش سے تعلق رکھنے کے شعبے میں گرفتار افراد کے منصفانہ ٹرائلز نہیں ہوتے اور بے گناہ افراد جو کہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں ان کو نئی زندگی شروع کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، داعش کے خلاف اس کامیابی کو مکمل سمجھنا درست ہے۔ یہی سوال میں نے کامران بخاری جو کہ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک سینٹر فار گلوبل پالیسی سے منسلک ہیں ان کے سامنے رکھا۔ اسد، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جنگ جو ہے وہ عراق اور سیریا میں لڑی گئی تھی
تو ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جو عراق اور سیریا میں جو ہے موجود ہیں، ابھی بھی داعش کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، ان کو بے گناہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ ان کے لواحقین ہیں، بیوی بچے ہیں، دیگر جو ہے فیملی ممبرز ہیں، یا وہ جو جن کو POWs کہتے ہیں، پرزنرز آف وار ٹائپ کے جو سچویشن ہے. تو یہ ایک ایسے ماحول میں ہے انفارچونیٹلی کہ مین سٹریم میں ان کو لانا یا ان کا کوئی پکا بندوبست کرنا کہ یہ دوبارہ سے جو ہے سیکیورٹی کا ایشو نہ بن جائے، دوبارہ سے یہ اپنا جو ان کی جو گزشتہ ایکٹیویٹیز تھیں وہ ان میں دوبارہ نہ چلے جائیں، ان ادر ورڈز کہ ہمارے پاس ریسیڈیوزم نہ ہو جائے. تو وہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایسے مواقع ہوں ان کے پاس کہ ان کو جو ہے وہ ابزارب کیا جا سکے. اب پرابلم اگر دونوں ملکوں میں دیکھا جائے تو ریاستیں دونوں جو ہیں ملکوں کی وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. کہ وہاں پہ اگر جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں ریاستیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو عراق میں جب یہ کیمپس بند ہو جائیں گے جن میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کو اگر واپس پش کر دیا جاتا ہے ٹورڈز دی مین اسٹریم یا ان کے آبائی گھروں کی طرف یا جن علاقوں سے وہ بلانگ کرتے ہیں، تو اس میں تو ایک اور کافی بڑا جو ہے وہ کرائسس ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو عالمی برادری کیوں خاموش ہے اس پہ؟ یہ نوٹس نہیں لے رہی اس کا، یا عالمی برادری کو اپنے اس وقت مسائل ہیں؟ عالمی برادری کو اپنے مسائل ہیں. وہ عالمی برادری جو ہے وہ ایک تو ٹرمپ انتظامیہ کا جو دور ہے اس سے گزری ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے مشن اکمپلش ڈکلیئر کر لیا تھا کہ بھائی ان کو تو ہم نے قلع کما کر دیا، ان کا داعش کا میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کر دیا، اب مجھ سے اور نہ مانگو کچھ بھی، ہماری ذمہ داری تو پوری ہوئی. اب جو ہے یہ جو علاقے کے اندر جو ریاستیں ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے. تو یہ والا ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے. مغربی ممالک کو اکیلے کچھ کر نہیں سکتے، گو کہ مغربی ممالک اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کیونکہ ریفیوجیز وغیرہ اور بہت سارے لوگ داعش کے ان کے ملکوں سے گئے تھے، ان کے لواحقین ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں کہ جی ہم برطانوی سٹیزن ہیں، ہمیں واپس لے لیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، غلطی ہو گئی. تو لیکن وہ اکیلے کچھ کر نہیں سکتے. تو جو یورپی ممالک ہیں خاص طور پہ، ان میں سمپتھائزرز کی ایک جو ٹرم ہم پچھلے کچھ عرصے سے سن رہے ہیں، کافی جن سے سمپتھائزرز آئیسس فار ایگزامپل یورپ میں ہیں، ان کو کافی کنسرن ہے یورپین کنٹریز کو اس حوالے سے. تو اگین برنگ بیک دا عالمی برادری، عراق اور شام سے جو لوٹنے والے عسکریت پسند ہیں ان سے کتنا خطرہ ہے یورپ؟ دیکھیں ظاہر خطرہ تو ہے، وہ والا خطرہ نہیں ہے جو پہلے تھا، کیونکہ وہ جو جسے کہتے ہیں آرگنائزیشنل جو ڈھانچہ تھا داعش کا، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، وہ شیٹر ہو گیا ہے. تو اب وہ جو آرگنائز لیول پہ تو لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ملکوں میں جا کے تو سیکیورٹی کے ایشوز کریٹ کر سکتے ہیں. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. دنیا بھر میں ریسائیکل مواد سے اب ہمیں روزمرہ کے استعمال کے لیے سینکڑوں کارآمد چیزیں ملتی ہیں. ایک سروے کے مطابق اس وقت ریسائیکل انڈسٹری کا حجم تقریباً $300 ارب ہے. پاکستان میں یہ کتنا کارآمد ہے؟ چلتے ہیں لاہور، جہاں شہر کے مختلف علاقوں سے کوڑا جمع کر کے لاہور کی روبینہ شکیل 5000 سے زائد غریب اور نادار بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر رہی ہیں. صوبہ پنجاب میں آبرو ٹرسٹ اسکول کی 8 شاخوں کے اخراجات کا ایک بڑا حصہ کچرے سے نکلی اشیاء کو قابل استعمال بنا کر اور فروخت کر کے پورا کیا جاتا ہے. 18 سال سے چلے آ رہے اس انوکھے اسکول سسٹم کے بارے میں بتا رہی ہیں لاہور سے سمن خان. کوڑے سے اشیاء چنتی روبینہ شکیل پڑھی لکھی خاتون ہیں. لاہور کے پوش علاقوں سے کوڑا جمع کرنا اور اس کی چھانٹی کرنا ان کی مجبوری نہیں. روبینہ ان استعمال شدہ اشیاء کو فروخت کر کے ضرورت مند بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرتی ہیں. اس سلسلے کا آغاز 2003 میں گھر کے گیراج سے ہوا، جہاں انہوں نے ضرورت مند بچوں کو پڑھانا شروع کیا. ایک صاحب ثروت کی نظر پڑی جنہوں نے 1 کنال اراضی عطیہ کر دی. 5 بچوں سے شروع ہونے والا سلسلہ
18 साल में 8 सब कैंपसेस तक पहुंच गया है, जहां 4000 से ज़ायद बच्चे न सिर्फ नर्सरी से 12वीं तक तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि उनकी बहुत सी और ज़रूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। मुझे तो ये नहीं पता था कि जब बच्चा पढ़ाने लगूंगी तो वो बेहोश भी हो जाएगा। जब वो बेहोश हुआ तो पता चला भूख से बेहोश हो रहा है, तो आपको खाना देना पड़ा। फिर जब आप हाज़िरी के अटेंडेंस देख रहे हैं, बच्चा अगर हाज़िरी नहीं दे रहा तो इसका मतलब है वो बीमार है, तो डॉक्टर लाना पड़ा। फिर जब पता चला कि इसके अंदर तो विटामिन्स बहुत कम है, इसमें आयरन नहीं है, इसमें कैल्शियम नहीं है, तो दूध पिलाने के लिए जानवर ख़रीदने पड़े। फिर पता चला अब ये 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ ली हैं, फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, घरों से बाहर नहीं जा सकती, तो सिलाई कढ़ाई करके चलो 100-200 रुपये कमाना शुरू करो, तो सिलाई सेंटर बनाना पड़ा। ये सारे आपस में जो है ना ऐसे लिंक हुए हैं। फिर पता चला कि 10वीं में इतने हाईएस्ट मार्क्स लेती हैं, कॉलेजेस में जाती ही नहीं है, तो फिर ग्रेड 12 तक करना पड़ा कि उसके बाद चलो फिर कोई ना कोई टेक्निकल या यूनिवर्सिटीज़ इनको फिर ले लेंगी। बच्चों की यूनिफॉर्म, बस्ते, किताबें, खुराक, असातिज़ा की तनख्वाहें, बिजली, पानी के बिल और दीगर ज़रूरतों का माहाना खर्च 50 लाख से ज़ायद है। 20 लाख माहाना तो मुखय्यर हजरात की जानिब से मुख्तस है, जबकि 10 से 15 लाख कूड़े से कमाकर इस्तेमाल किया जाता है। आबरू ट्रस्ट की गाड़ियाँ लाहौर के महंगे इलाकों से खुश्क कूड़ा, रद्दी और पुराना सामान जमा करके आबरू वेलफेयर के वेयर हाउस में लाती हैं। मैं उस वक्त समझ रही थी कि ये बहुत आसान काम है, कूड़ा ही तो उठाना है, कूड़ा ही तो उठाना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि बहुत बड़ा माफिया है कूड़ा उठाने के पीछे, और बहुत मसाइल हैं और बहुत बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं। वो लोग समझते हैं मैं उनकी कंपटीटर हूँ, पता नहीं मैं उन्होंने जो करोड़ों का ठेका लिया हुआ है उसमें से मैं क्या निकाल के लेकर जा रही हूँ। हालांकि मैं बारहा बताती हूँ कि देखो भाई, अगर डिफेंस में 1000 घर है ना, तो मैं 200 से 250 घरों में जाती हूँ, और वो भी हफ्ते में 1 दिन जाती हूँ। तो खुदारा इस बात को समझो कि मैं किसी का कुछ नहीं कर रही। इसी कूड़े से निकला इस्तेमाल शुदा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सजावटी अशिया स्कूल में रखने के काम भी आ जाती हैं। जब अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए तो बेहतर हालत में आए सामान की मुरम्मत करके यतीम बच्चियों के जहेज़ का इंतज़ाम भी किया जाता है। बाकी रह जाने वाली बहुत सी अशिया इदारे के 3 भलाई मराकज़ में चली जाती हैं, जहां लोग इन्हें इंतहाई सस्ते दामों खरीद सकते हैं। यहाँ से हासिल होने वाला पैसा भी बच्चों की तालीम पर लगाया जाता है। हम लोग 3 बहन भाई हैं। मेरे वालिद साहब मजदूरी करते हैं। हमारे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे यहाँ पे एडमिशन लेके दिया, और यही मकसद था कि हम लोग अच्छे तालीम हासिल करके कुछ बन सके, अपनी लाइफ में कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। जैसे पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने ज़िंदगी गुजारी है, वैसे ज़िंदगी हम ना गुजार सकें। मैं तो वैसे ही ब्रॉडकास्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर जिस फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उनमें कंपेयरिंग करना या डिबेट्स, स्पीच वगैरह करना, तो मैं पार्टिसिपेट में करती रहती हूँ। वैसे भी स्कूल वाले मौका देते हैं कि अगर बच्चे में कोई टैलेंट है तो हम उनको सामने लेकर आएँ, वो बच्चे कुछ कर सकें, कुछ बन सकें। मैंने आईकॉम कंप्लीट किया, फिर मैं यहाँ पे वापस आई क्योंकि मुझे अपनी स्टडी आगे भी जारी रखनी थी। इस तरह मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को टीच करना शुरू किया। सैलरी भी मुझे दे रहे हैं ताकि मैं अपनी आगे पढ़ाई जारी रख सकूँ। मजदूर तबके के अलावा झुग्गी बासियों के बच्चों के लिए झुग्गियों में जाकर तालीम देने का सिलसिला भी जारी है। आबरू एजुकेशन वेलफेयर का अगला मिशन यतीम खाने का क़याम है, जिसकी बिल्डिंग की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बस अब इंतज़ार है तो बच्चों के इंदराज का। आबरू वेलफेयर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले यतीम बच्चे और बच्चियों को यहाँ तरजीही बुनियादों पर रिहाइश दी जाएगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी सीरीज़ चित्राल 360 के आखिरी हिस्से में आज उमर फारूक हमें लेके जा रहे हैं नान कैफ़े, एक ऐसा रेस्टोरेंट जो माँ और बेटियों ने मिलकर खोला है। यहाँ फास्ट फूड भी मिलता है और रिवायती चित्राली खाने भी, लेकिन ये वो नान कैफ़े नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये है चित्राल के इलाके बोनी बाज़ार का नान कैफ़े। यहाँ नान का मतलब वो नहीं जो आप समझते हैं, बल्कि चित्राली ज़ुबान में नान माँ को कहते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम नान कैफ़े इसलिए है क्योंकि इसे एक माँ अपनी बेटियों के साथ मिलकर चला रही है। अब
फैमिली सारे जो है वो फैमिली मेम्बर्स ने सोचा कि क्या आइडिया पेश किया जाए और किस बुनियाद पर हम अपना बिजनेस जो है वो एक सेटअप जो है वो रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सब जब बैठ गए तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कैफ़े जो है वो चलाया जाए कि जिसमें ट्रेडिशनल खानों के साथ साथ जो है वो फास्ट फूड जो है उसको भी हम उसमें एक ट्रेंड जो है वो उसको आगाज़ करें। शाहिदा परवीन खुद फास्ट फूड बनाती है, जबकि उनकी नान यानी अम्मी ने रिवायती खाने बनाने की जिम्मेदारी ली हुई है। यहाँ देसी खुराक यानी चीरा शापक, गलमंदी, सना बाची, शोला, खुबरोग सब खाने आते हैं। फिर वो लोग जो अपनी फैमिली के साथ बाहर से चित्राल, दरोश और तमाम इलाके घूमने आते हैं, बाहर के मुल्कों से भी आते हैं, वो ये खाना बहुत पसंद करते हैं। शाहिदा परवीन कहती है कि चित्राल में नान कैफे खोलना आसान ना था, क्योंकि यहाँ खवातीन का बाजार में आकर कारोबार करना मायूब समझा जाता है। आगाज में हमने ये देखा कि हमने सोचा कि दोनों काम हम एक साथ चलाएं, कि किचन की जिम्मेदारी भी और मैनेजमेंट जो है वो भी एक साथ करें। तो फिर उसमें हमें सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हम कह सकते हैं कि ओहदेदारान हैं, वो हमारे पास आए और उन्होंने बहुत सारे एतराज़ किया कि हम ख़वातीन को इस तरह इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इस तरह बाहर आ जाए। ताहम वक्त के साथ शाहिदा ने लोगों के रवैयों में तब्दीली देखी। आज 2 साल बाद यहाँ बहुत से लोग अपने खानदान के साथ खाना खाने आते हैं। आपको ये एहसास होता है कि जैसे आप अपनी माँ के हाथ से खा रहे हो। तो और दूसरा ये कि जब हम देखते हैं तो इस ज़माने में वुमेन एम्पावरमेंट में तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे फीमेल्स जो है वो लीड कर रहे हैं और एक कैफ़े को चला रहे हैं। मुश्किलात के बावजूद शाहिदा परवीन और उनकी वालदा ने एक नई रिवायत की बुनियाद डाली है, जिससे न सिर्फ दूसरी खवातीन के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि यहाँ आने वाले सियाहों को चतराल की रिवायती घरेलू मेहमान नवाजी का मज़ा भी मिल रहा है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, चित्राल। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती एहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। कोरोना की आलमी वबा की शिद्दत अभी भी कम होती दिखाई नहीं देती। अब तक सामने आने वाली वैक्सीन से कुछ उम्मीद बनती नज़र तो आती है, लेकिन ये वायरस शायद इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में सेहतमंद रहने के बारे में संजीदगी से सोचना ही पहला और ज़रूरी कदम है। सबाशा खान की इस हवाले से माहिरीन सेहत से बात हुई, जिनका कहना है कि मजबूत आसाब और मुस्बत सोच भी सेहतमंद रहने में हमारी मदद करती है, और इसके अलावा अच्छी खुराक और मुनासिब नींद बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। जेन और उनकी बेटी आज से खेल रही हैं। पूरा दिन काम करने के बाद ये उनके जहनी तौर पर रिलैक्स करने का एक तरीका है। तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि तवाना मदाफियती निज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल रखें। कोविड जो है वो इंसान खुद ही फाइट करता है, और बहुत सारी डिजीजेज इंसान खुद ही फाइट करता है अपने इम्यून सिस्टम। अपने एटीट्यूड पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में हो और जल्दी गुस्से में आ जाएं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। फिर मैं ये भी चाहूँगी कि आप अपने प्रिवेंटिव मेडिसिन को, जैसे कुछ चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उन पे ध्यान दें ताकि आप बीमार हो ही ना। तो जब आप बीमार होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाए। जेन प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी बीमारियों को होने से पहले ही रोकने के तरीक़ा इलाज में यकीन रखती हैं। इसलिए उन्होंने नर्सिंग छोड़कर वेलनेस कोच बनने को तरजीह दी, क्योंकि वो कहती हैं बहुत सी बीमारियों से अपना तर्ज ज़िंदगी बदल कर बचा जा सकता है, और इसी उसूल पर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अमल पैरा हैं। सब्जियां विटामिन और मादनियात से भरी हैं, तो विटामिन या कुछ और लेने से बेहतर है कि उन्हें सब्जियों ही से हासिल किया जाए। ख़ास तौर पर मेरी बेटी के लिए ये यकीनी बनाना कि वो लंच में कुछ गाजर या शिमला मिर्च ले रही है, और फिर हमारे पास रात के खाने में भी सब्जियां होती हैं। मैं सुबह अंडों के साथ सब्जियां पालक या केल लेती हूँ, तो ये एक तरीका है। दूसरा ये कि आप चुस्त रहें। डॉक्टर रफत चौधरी कहती हैं सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि तली हुई चीज़ों से और बाहर का खाना खाने से गुरेज करें। अपने स्लीप हाइजीन और हेल्दी ईटिंग, ये आपके बेसिक कॉर्नरस्टोन है। आपने इसमें ऐड करना है, अगर आपने खाने में हल्दी डालनी है या चाय में हल्दी डालनी है तो आप ज़रूर कर सकती हैं। अदरक का इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी सप्लीमेंट्स जो हैं, अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड नहीं है तो इट्स ओके टू
टेक सप्लीमेंट्स. ग्रीन टी आपको इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है, आप ग्रीन टी पी सकते हैं. वबा के दौरान एक्टिव रहने के लिए जैन और उनकी बेटी पाबंदी से वॉक भी कर रही हैं. इसे वॉलीबॉल पसंद है और वबा से पहले वो वॉलीबॉल खेलती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती, तो उसे जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रखने के लिए हम दूसरे तरीके अपना रहे हैं. मसलन हम कुछ दिन वर्जिश करते हैं, फैमिली के साथ वॉक करते हैं, बाइकिंग करते हैं और यकीनन मास्क पहनते हैं. और एक मसरूफ दिन गुजारने के बाद जैन की पूरी कोशिश होती है कि वो और उनकी फैमिली रात 9 बजे सोने के लिए लेट जाएं. और माहिरीन भरपूर नींद को भी एक मजबूत मदाफियाती निज़ाम के लिए अहम करार देते हैं. हम सब लोग जो है देर से सोते हैं, अपनी नींद का ख्याल रखना चाहिए. अगर हम अच्छी तरह से सोएं, जैसे एक एडल्ट को 7 से 8 घंटे नींद चाहिए. So we have to develop good habits. So good hygiene, good healthy habits. माहिरीन कहते हैं एक मजबूत मदाफियाती निज़ाम के लिए एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी ज़रूरी है और इस सेहतमंद लाइफस्टाइल की जानिब नई छोटी छोटी आदत जिन्हें एक लंबे अरसे तक कायम रखा जा सके अपनाना ही कामयाबी की अलामत है. और इन्हें अपनाना और भी आसान हो जाता है जब घर के सभी लोग इस तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बने. सफा शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया. लगभग एक दहाई के अरसे में तकरीबन 700 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की लागत से तैयार होने वाले दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने हाल ही में पहली तस्वीर खींची है. 3 अरब पिक्सल्स वाला ये कैमरा अमेरिका के 2 सरकारी महकमों का मुश्तरका प्रोजेक्ट है और अगले साल 10 साल तक इनफैक्ट कायनात की तस्वीर खींचने के लिए तैयार किया गया है. इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में. चिली के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म प्रोजेक्ट जल्द शुरू होने वाला है. फिल्म का मौजू है पूरे कायनात और अदाकारों में शामिल हैं कायनात के अरबों पहलू. हम जानते थे कि हमें एक बहुत बड़ा कैमरा चाहिए और जिस कैमरे की हमें जरूरत थी उससे बड़ा कैमरा कभी किसी ने बनाने का तस्वुर तक नहीं किया था. स्टीवन काहन एक ऐसे कैमरे की तामीर के मंसूबे के सरबराह हैं जिसकी रेजोल्यूशन 3 अरब पिक्सल्स है, जो एक स्मार्टफोन से ली गई तस्वीर के साइज से 300 गुना ज्यादा है. इससे 10 साल तक आसमान पर होने वाली सरगर्मियों की टाइम लैप्स वीडियो तख्लीक की जाएगी. अगर हम 10 साल तक मुसलसल ऐसा करेंगे तो हमें एक तरह से आसमान के हर हिस्से की हजारों तस्वीर मिलेंगी. उन तस्वीरों का मुआजना करके देखा जा सकता है कि आसमान में तब्दीली कैसे आती है और उसमें मौजूद हर शे कैसे हरकत करती है. अमेरिकी हुकूमत की फंडिंग से बनने वाले इस कैमरे से हासिल होने वाला बेमिसाल डेटा कायनात के 2 बड़े राजों की तहकीक में मदद देगा, यानी तारीख मादा और तारीख तवानाई. लेकिन तहकीककारों ने इस कैमरे के पहले तजर्बाती टेस्ट के लिए कायनात की बजाय एक मामूल की चीज का इंतखाब किया, यानी एक सब्जी ब्रोकली का. उसमें मुख्तलिफ पैमाइशों में कई तरह की साख्तें मौजूद हैं. ब्रोकली की इस तस्वीर को इसके भरपूर साइज तक फैलाने के लिए 378 अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीविजन स्क्रीन्स दरकार होंगी. दुनिया भर के साइंसदान मकामी साइंसदानों के साथ इस कैमरे के इकट्ठे किए गए डेटा का तजिया करेंगे. डॉक्टर स्टीवन काहन कहते हैं कि कायनात में कहकशाओं की तादाद इतनी ज्यादा है कि दुनिया के हर क्लासरूम में एक कहकशां पढ़ाई जा सकती है और तलबा को सुपरनोवा दरियाफ्त करने की काबिलियत दे सकती है. सुपरनोवा किसी सितारे के धमाके से फट जाने का अमल है जिससे इंतहाई बड़ी मिकदार में रोशनी पैदा होती है. स्कूल के बच्चे वो पहले इंसान होंगे जो इस चमकते हुए सितारे या सुपरनोवा को हकीकत में देख सकेंगे. तवक्को है कि ये कैमरा साल 2023 से तस्वीर कशी शुरू कर देगा. मैट टेबल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका. और ये था आज का व्यू 360. स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर. इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज. ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.